इस लॉकडाउन में बहुत सारी फैमिलीज को साथ में रहने का मौका मिला है एंड लॉट ऑफ unhidden things which has been revealed during this entire lockdown. बहुत सारे इसके पॉजिटिव साइड भी बाहर आए हैं और बहुत सारे नेगेटिव साइड भी इसके बाहर आए हैं. नाउ सिंस वी आर इनटू पेरेंट ट्राइब, आपको पता ही है पेरेंट ट्राइब में वी फोकस ऑन हाउ अ पेरेंट कैन गिव द बेस्ट चाइल्डहुड पॉसिबल टू देयर चाइल्ड. तो उसी के लिए वी ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स. We share and discuss new strategies, new secret, new techniques which can be applicable with your child so that you are able to mold them in the right direction. Now, एक कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से क्या चाहता है? Intimacy, bonding, respect, love, care, right? These are the basic human nature that we all are looking for. But unfortunately, in this time, it is becoming more and more difficult. So, पेरेंट और बच्चे का ये जो रिलेशनशिप है, इसमें बॉन्डिंग का होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर ये बॉन्डिंग ही नहीं है, अगर वो अपनत्व की भावना ही नहीं है, अगर वो इंटीमेसी नहीं है, तो हम कुछ भी कर ले अपने बच्चे के लिए, वो कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, कितना भी क्रिएटिव हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, वो उसके रियल मायने नहीं होते. एंड इफ यू सी लुक अराउंड द वर्ल्ड, लॉट ऑफ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल दे डाई अलोन. सो कॉल्ड रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, क्योंकि वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनके साथ उनके बच्चे या उनकी फैमिली नहीं होती है, और बहुत सारे नियर एंड डियर नहीं होते हैं. सो आर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर वी लिविंग एंड इज इट टेकिंग अस टू द राइट डायरेक्शन एंड व्हाट वी कैन डू राइट नाउ. अगर आपका बच्चा भी छोटा है, अगर आपका बच्चा एक ऐसी एज में जहां वो आपके साथ रहता है, आप अभी ऐसा क्या कर सकते हैं? कैसे उस बॉन्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं? कैसे हमारे फैमिली वैल्यूज चेंज हो रहे हैं? इसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडे आवर गेस्ट पेरेंटिंग एक्सपर्ट, मिस्टर आलोक कुमार. And Alok and I, we are together doing a lot of work, and I know him personally. He's a really a genuine and very passionate guy. He's father of two sons, 9 trees, and husband to a superwoman. He's an engineer by profession. He's also an entrepreneur now. He has been extensive a traveler and now the author. And many of his parenting talk include the Indian values. Many of he focused a lot on values, which generally is missing in our society. So I thought, why not invite my dear friend, Mr. Alok Kumar, into our today's parenting show and find out some of the secrets, some of the techniques, some of the tips using which we can deepen the bonding and the connection with our child. So let's welcome Mr. Alok Kumar. Alok ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you, Mahendra ji. Lot of thanks for your invite on this show. I really love to interact with the people. मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के पास आऊँ और जो experience मैंने gain किया है throughout my life till now, I wanted to share with all the people, all the parents. So in short, I'll describe myself as you already told you. I'm father of two sons, 9 trees, husband to a superwoman, an engineer, entrepreneur, traveler, author at heart. Because in the lockdown, I've published 2 books on Amazon, right? Wow. And a parenting expert for more than a decade now. And I bridge the gap between the so-called generation gap with the parent and the child so that they enjoy their lives, they make them happier and better. Right? Wonderful, wonderful. Great knowing you, Alok ji. And I think the kind of work that you're doing is really tremendous. But I have a question for you. Yeah. Sir, because when I was going through your profile and your past experience, you come from a very different industry altogether. Then how come you came into parenting? What prompted you to become a parenting expert? Yeah, it's a small story. I'll cut down short, but it's really good to know about somebody whom you are interacting with. So I was in my engineering second year when my father expired. Actually, doctor has diagnosed him with blood cancer, and एक date मिल गई थी कि भाई he'll be living up to this year only, right? So at very early stage I got married and I had a son. मैं जब थर्ड ईयर में था तो मेरा बेटा था और आई वॉज वन ऑफ दोज गाइज जो कॉलेज कैंपस में अपने बेटे को गोद में लेकर घूमता था, राइट? सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दैट फीलिंग ऑफ पेरेंटहुड स्टार्टेड इन माई माइंड ऑब्वियसली. बट बिकॉज ऑफ
some family liabilities. I had to go abroad. I got selected in one of the companies in UAE. कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरी जॉब हुई और एक साल में पूरा वहां रहा छोटे बच्चे को छोड़ के. आई डिड नॉट सी हिम ग्रोइंग. दैट फर्स्ट इनिशियल ईयर वाज लाइक दैट ओनली. So it was a pain in my heart कि नहीं, I missed something very very important. So that was the triggering factor from where I started thinking about parenting. And in around 2013, I again, when my child was in his teens, I came across so many different questions, and I thought, why not to explore all these options, learn more about it, and bring it to the world. So that passion of knowing your child better, understanding him better, and why I called bridging the gap, because I see lot of things which children try to tell people और माँ बाप उनको समझ नहीं पाते हैं. माँ बाप जो बोलते हैं बच्चे उनको समझ नहीं पाते. I tried to find out the reason behind it, and I found it. And the moment I found it, I wanted to take it to the world. And that's why, and that's how I came into parenting and started doing all these kind of shows and started making courses for the parents. So this is it. Wow. Brilliant, brilliant. So see, most of the people whom I meet, most of the entrepreneur, most of the successful people, everybody has a personal reason why they want to do something. And and now I see, why you are so passionate about, because you might have felt the same feeling and which you don't want other people to go through. So I think that's a very noble cause. So why you are very specific to this, bridging that gap or the generation one, how you are able to, dig into this particular topic, and what is your research about it? What are the current situation? Why this problem is something to talk about? We should all be talking about. Share some highlight on that. Yeah, I have three major points which I wanted to discuss, and I keep talking on different forums as well. Okay. First point is, normally the sort of society which we are living in, मैं कहता हूं कि आज हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं. May it be a girl child or a boy child, we don't Right. feel safe, right? Why we don't feel safe? हम तो सब वही हैं. हम कहते हैं हम सब पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, लेकिन जब हम सब पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं तो हम अपने बच्चे के लिए सेफ क्यों नहीं फील करते, राइट? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. द रीजन इज, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं उनको क्या सीखना चाहिए. चिल्ड्रन आर देयर, वो हम एक करिकुलम में डाल देते हैं. स्कूल में चला गया बच्चा, वो सीखना शुरू करता है. ही लर्न्स फ्रॉम हिज पीयर. स्कूल एक करिकुलम पे फोकस करता है. दे डोंट फोकस ऑन बिल्डिंग योर मोरल वैल्यूज, राइट? उनको ये नहीं सिखाते कि यहाँ पे क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्या अच्छी चीज होनी चाहिए. दे जस्ट गो बाय द करिकुलम, right? And sorry to say that our curriculum does not include all those things which is very much required for a child to think on those points, right? तो यदि मैंने सोचा कि यदि हम एज ए पेरेंट, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर होम्स, वी स्टार्ट आवर चिल्ड्रन, यदि हम अपने बेटों को सिखाना शुरू करें कि बेटियों की कदर करें, यदि वो किसी की बेटी है तो तुम्हारे घर की भी बेटी हो सकती है. So that respect will keep on mounting on his brain over a period of time. So जैसे वो बड़ा होता है तो that will be there in his mind. उसको कुछ भी गलत करने के पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, वो गलत सोचेगा ही नहीं. Absolutely. Yeah. Similarly, when you talk about a female child, we see, मैं हमेशा कहता हूँ कि female are the creators, right? बच्चियां घर को संभालती हैं, जोड़ के रखती हैं. ये हम आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं, right? उनमें भी कुछ कमियां होती हैं. उन कमियों को हम अभी से सिखाना शुरू करें. So when they are grown up, they take care of their family, they take care of their personal and professional life as well. वो बढ़िया से कर पाए. So ये शुरुआत कहाँ से करनी है? हमको अपने घर से करनी है. So we being parents, we have to do it very religiously from day one, day zero, I would say, right? So this is a very common thing which I normally talk about on different forums. Start from our own homes. Let's see the change. Very nice, very beautifully put. And I think, see, in our parent tribe also, in most of my program, I say parenting does not start when you have a child. Parenting starts the moment you start thinking of having a child. That's where the parenting should start, with your thought process, so that you are able to inculcate the right behavior, the right thought process, the right vibration, I would say, into your child. And we have seen a lot of good example in our Vedic sculpture, where the child used to learn from the mother's womb only. So you're very right. From day zero, of course, we should start
in implanting those values, those systems, those right behavior, right attitude, right approach, so that later on when they are grown up, when they are adult, they don't have to face the same problem. True. बट मुझे एक बात बताइए कि देखो हर माँ बाप तो ये चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा अच्छा बने ज्यादातर, बट कर नहीं पाते हैं। मतलब चाहत तो सबकी है। आप देखिए, मतलब आई टेल यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। आई आस्क दिस क्वेश्चन इन ऑल माय वेबिनार एंड ऑल माय प्रोग्राम कि व्हाट इज गुड पेरेंटिंग एंड व्हाट इज बैड पेरेंटिंग, एंड पीपल हैव डिफरेंट आंसर। बट मैं मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड पेरेंटिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड पेरेंटिंग, बिकॉज हर हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे का भला करूं, True. क्योंकि उसकी नजर में वो बंदा अपने बच्चे का या भला ही चाहता है, उसके हिसाब से वो सही कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट आर हैविंग गुड इंटेंशन, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स वो बच्चों में वो वैल्यूज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कुछ गलतियां वो कर जाते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पेरेंट करते हैं, या जो उनको जिनकी वजह से बच्चे का उनके साथ जो कनेक्शन है या जो उनके बीच का गैप है वो बढ़ते जाता है? I'll tell you. Uh, Pehla to I'll again second to your thoughts that parenting starts from your mind. I also start talking about this. मैं यही कहता हूँ सबसे पहले आप दिमाग में पेरेंट बनते हो, फिर आप दिल में बनते हो, तब आप फिजिकल पेरेंट बनते हो. So these are all 3 steps. Right? Now ब्रिलियंट। coming to your question. आखिर हम क्या करते हैं और क्या नहीं? हर माँ बाप की चाहत होती है कि उसका बच्चा हमेशा से हर चीज में अच्छा करे. Right? मेरा एक पंच लाइन भी नॉर्मली आई टॉक अबाउट एवरी पेरेंट विश दैट अ सुपर परफॉर्मर चाइल्ड ऑलवेज. हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा एकदम ऑलराउंडर बने हर चीज में, लेकिन नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? द प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट विद द चिल्ड्रन, द प्रॉब्लम इज विद द पेरेंट्स. व्हाट आई हैव फेल्ट इट. नाउ आई सिंपली आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. और मैं हमेशा ये पेरेंट्स से पूछता हूँ, आप ये बताइए आपने लास्ट सब बच्चे के साथ उसकी जोक्स पे कब हंसे हो? Have you sit with your child and crack jokes with him? कब हंसे आप खुल के, कब हंसे हो अपने बच्चे के साथ? ये जरा सोचने की बात है. It's very simple, but I'm asking all those parents who are live, think about it and remember कि लास्ट आप अपने बच्चे के साथ कब खुल के हंसे हो. सेकेंडली, आप अपने बच्चे के साथ लास्ट कब खेले हो? खेलने का मतलब जरूरी नहीं कि आउटडोर हो, आउटडोर इंडोर एनी गेम जिसमें दोनों को मजा आ रहा हो, जबरदस्ती वाला नहीं, जिसमें बच्चे ने एंजॉय किया हो साथ में. राइट? अभी दिवाली गई है, क्रिसमस गई है, हैव यू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद सम डेकोरेशंस इन योर हाउस? या बच्चे को बोल दिया तुम कर लो, या यू हैड सम इलेक्ट्रिशियन एंड टू पुट ऑल दोस फैंसी लाइट्स प्लग में लगा दिया और हो गया? इज इट? या पेंडेमिक में अभी बहुत सारे लोगों ने नए नए डिशेस ट्राई किए हैं. इफ यू हैव ट्राइड, हाउ डिड यू फील इट? सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. एंड मेरा पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि मैं इसको रॉकेट साइंस नहीं बनाना चाहता, मैं इसको फ्रेंच जर्मन नहीं बनाना चाहता. मैं इसको आपके एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं और एग्जिस्टिंग सोच के साथ उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जो आप करेंगे, सो विल क्रिएट डिफरेंशिएशन बिटवीन ना द पीपल, द अर्लियर यू एंड द न्यूअर यू. मैं हमेशा ये कहता हूँ. सो योर क्वेश्चन इज कि आखिर हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं. ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं. या योर करेक्ट म्यूटेड. आलोक जी। सो मैं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं? करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू. अभी क्या हो रहा है, वी आर ऑल बर्डन विद आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स. हमने अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सब कुछ चाहिए हमें और अभी के अभी चाहिए. और उसको मतलब मीट करने के लिए, टू मीट दोज एक्सपेंसेस, most of the people, I'm talking about the masses, I'm not talking about the people who are again above that line. masses की बात हो रही है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात है, जहां पे people are working hard and they have kept all those liabilities with them. यदि एक महीने सैलरी नहीं आती है तो they are like अब क्या होगा? इसके चक्कर में to meet those expenses they are running hard, right? The mother, the father, and they are short of time. थक के आएंगे यदि 10 घंटे काम करके, तो बच्चे के साथ यदि बच्चा बोलेगा मैं खेलना चाहता हूं, तो हाउ विल यू प्ले? तो वो ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है. वर्क लाइफ बैलेंस की जो मैं बात कहता हूं, आप काम करो बिकॉज अर्निंग इज रिक्वायर्ड, it is utmost required. But again, why the children should compromise because of this? They are leaving, they are going away from you because you are not able to give quality time.
क्वालिटी टाइम का ये भी मतलब नहीं है कि आप उसके सामने रहो, डोंट बी फिजिकली प्रेजेंट, गेट इन्वॉल्व विद देम. सो पहला जो रीजन होता है, people are not involved with their children, and if they are not involved, the distance between the two hearts start increasing, और फिर वो आपकी बात नहीं सुनता है. यदि आज आपके पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो कल को बच्चे के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, when he'll be grown up. And this is the main reason of the generation gap, which I feel. तो इसको ब्रिज करने का कुछ छोटे छोटे तरीके हैं. आज मैंने सोचा कि I'll just give you one test. What is that test? जाड़े का दिन है, हर कोई कंबल रजाई में सो रहा है. Do a test. That test will give you so many things. आप सुबह में अपने ठंडे हाथ, आप हाथ को गीला कर लीजिए. बच्चा कंबल रजाई में सो रहा हो, बेटा बेटी कोई भी हो, just go and touch your cheeks, right? ठंडा लगेगा. Just try to observe what reaction he or she is giving. There can be different reactions. पहला हो सकता है, अरे पापा सोने दो ना, क्या कर रहे हो. दूसरा होगा, he'll not answer, he'll again put his blanket on his head. तीसरा होगा कि अच्छा पापा मैं उठता हूं ना अभी. So all these three things will give you a image of what your child is and how your child is connected. यदि बच्चा उसको पॉजिटिवली लेता है, he knows papa has come to love me, he is not there to irritate me, correct? So यदि वो फीलिंग उसके मन में है, मतलब you are already connected to him or her. And if it is not that, यदि कहता है अरे पापा क्या कर रहे हो, मेरे को सोने दो ना, आज संडे है, that means you are far away with his heart, right? So you have to bridge that gap. And how you are going to bridge that gap? Get involved, give quality time. बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा जो पहला फोकस ये होता है कि पहले बच्चे के दिल तक तो पहुंचो. आप आपकी बात वो तभी समझेगा जब आप उसके दिल तक पहले पहुंचोगे. आप तो अभी इतने दूर हो कि आपकी बात बस वो सुन रहा है, इज फिजिकली लिसनिंग, दैट्स इट. उसके कोई दिमाग में जा नहीं रही चीज, क्योंकि उसको पता है कि आई वॉज नॉट बीइंग केयर्ड व्हेन आई रिक्वायर्ड इट. बिना बोले ये चीजें हो गई हैं, तो फिर आपकी बात वो क्यों सुनेगा. सो ये छोटी छोटी गलतियां पेरेंट्स करते हैं, विच वी नीड टू रिजॉल्व एज ए पेरेंट्स. और जब वो सुनना शुरू करेंगे ना, मेनी पेरेंट्स आस्क मी, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, क्यों सुनेगा. इट्स लाइक नेटवर्क, राइट? आप किसी को फोन करना चाह रहे हो एंड ही डजंट हैव अ नेटवर्क इन हिज मोबाइल, यू आर कॉलिंग, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, बात कहां से होगी. So you have to be in the same network, at least there should be network, not same, there has to be network, so that when you connect you get response. As simple as that. Wow, that was a very, very insightful, I think, the answer that you have given. Yes, correct. I think somewhat people are not connected and they are expecting a response. Yeah. So it's like, building, creating a structure or building a very large, heavy Burj Khalifa on the sand without digging deeper into it. Correct. Right? So yes, I absolutely, कनेक्शन बहुत जरूरी है लोगों के साथ. और ये सिर्फ बच्चों पे ही एप्लीकेबल नहीं है, ये आई थिंक हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी बहुत अच्छा जो आपने बोला है ना, वो हस्बैंड वाइफ के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, बॉस और एम्प्लॉय के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है. दैट वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट आर वी डूइंग द ग्राउंड वर्क. जैसे बहुत क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आपने बैंक में पैसे जमा ही नहीं किए हैं और आप एटीएम कार्ड स्वाइप किए जा रहे हो, बोले पैसा अरे आ ही नहीं रहा है, एटीएम से पैसा नहीं आ रहा है. Of course, you have to deposit. Correct. And yes, because of the lot of material expectation and material world, what is happening is people are getting used to a credit card. Without depositing, they are swiping. Correct. But eventually, the credit card का आपको पता ही है कि जो उसके चक्कर में आता है, फिर उसका क्या हाल होता है. You are absolutely right. I really loved your answer. तो अगर जैसे मान लो अभी एक कोई पेरेंट है, खासकर टीनेजर्स में आपने देखा होगा कि एज के हिसाब से बच्चे का रिस्पॉन्स भी बहुत बदलता है. तो इफ आई टेक द सेम एग्जांपल दैट यू हैव गिवन, कि अगर ठंडे हाथ मैंने अपनी, अभी मेरी बेटी 6 years old है, मैं उसको करूंगा तो शायद उसको मस्ती लगेगा कि पापा मस्ती कर रहे हैं. बट व्हेन प्रोबब्ली शी विल टर्न 13 or 10 or 11 12, I might expect a different outcome regardless to whatever I have done, क्योंकि वो एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो खासकर एक ऐसी एज में जिसको हम सब टीनेज बोलते हैं, या एक ऐसी एज जहाँ पे बच्चा समझने लग जाता है, उसकी एक अपनी दुनिया बनने लग जाती है, उस पर्टिकुलर एज में जब बच्चे का रिस्पॉन्स हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वैसा नहीं आ रहा है जैसा हम चाहते हैं, ऐसे में पेरेंट को क्या करना चाहिए?
टीनेज पेरेंटिंग इज इंटायरली डिफरेंट, जो मैं हमेशा कहता हूँ। और टीनेज में क्या होता है, यू हैव लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस, यू हैव लॉट ऑफ मेंटल चेंजेस, आपका सोसाइटी में चेंजेस होता है, आप अपने पीयर के बच्चों के साथ ज्यादा घुलते मिलते हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स पैरेलली गोइंग ऑन। पेरेंट को लगता है कि ये तो मेरा ही बच्चा है, दे ट्रीट द सेम वे एज दे वर ट्रीटिंग इट अर्लियर, राइट? उनको नहीं लगता कि नाउ माय चाइल्ड हैज ग्रोन, नाउ he has created a platform for himself, a level of thought has been already generated in his mind, एक सोचने का तरीका बन गया होता है, एक पैटर्न उसके दिमाग में तैयार हो गया होता है, एंड ही एज एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो नाउ hungry of respect, he is hungry of acknowledgements, he is hungry of encouragement as well. क्या होता है जो पेरेंट्स नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट, उनको लगता है ना कि ये तो अपना ही बच्चा है ना, इसकी जरूरत क्या है। बट जब टीनेज में बच्चा जाता है तो उनको उसको लगता है कि मेरी बात अब सुनिए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी बात पेरेंट्स को सुननी चाहिए, पेरेंट उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट? ये सबसे बड़ी गलती होती है। और इवन हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, मैं हमेशा कहता हूँ कि लालियत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित। संस्कृत में कहा गया है कि जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए, मतलब मैं उसको 16 को टीनेज कंसिडर करता हूँ, कि जब बच्चा टीनेज में आ जाए तो कंसिडर हिम और हर एज ए फ्रेंड एंड गिव रेस्पेक्ट, आस्क हिज व्यू एज वेल। घर में कोई भी डिसीजन आप लेते हैं, टॉक टू हिम, सिट विथ हिम। कहीं जाने का भी प्लान है, किसी फ्रेंड कहीं जाने का प्लान है, सिट विथ हिम, बेटा मैं ऐसे प्लान करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिस अंकल्स प्लेस, व्हाट्स योर थॉट, व्हाट टाइम यू शुड गो, and take an opinion. When you start taking opinion, he or she will be feeling that I'm getting respect, पापा मेरे से पूछ रहे हैं, now he is considering me important. तो वो जो रेस्पेक्ट वाली फील आती है ना, यू स्टार्ट गिविंग, राइट? उसके बाद छोटी छोटी चीजों में उसको इन्वॉल्व कीजिए। आजकल के बच्चे ज्यादा टेक सेवी हैं, हो सकता है आप अच्छे हो, जानने के बावजूद भी गिव हिम सम वर्क, स्मॉलर वर्क। बेटा मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा ये कर दो, बेटा मेरे ट्विटर पे थोड़ा कुछ कर दो, ऑल्दो यू कैन डू इट, बट इससे क्या होगा ना, ही और शी विल बी फील कनेक्टेड। अच्छा पापा मुझे जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, बिना बोले आप उसको बोल रहे हो कि तुमको पता है, लो ये कर दो। तो ये छोटी सी चीजें हैं। बाजार जा रहे हैं, यू गिव हिम सम मनी, गो एंड बाय समथिंग। हो सकता है कि वो चीज उसको नहीं भी मिले, he'll take upfront decision, पापा ये चीज नहीं मिली, आपने बोला था, now I bought this, so he'll be able to take decisions on your behalf. So these things ये टीनेज बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो पेरेंट्स somehow इग्नोर कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को आपने पैसे दिए, बेटा ये लेके आओ, और कुछ दूसरी चीज के लेके आओ, तो आप उसको डांट देते हो, यार मैंने ये थोड़े बोला था। यार आस्क हिम, ऐसा क्यों किया, हो सकता है कि उसके दिमाग में हो कि इससे अच्छी चीज ये हो, एंड इफ यू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट तो उसको लगेगा यस आई हैव डन अ गुड जॉब, नेक्स्ट टाइम ही विल अप्लाई मोर माइंड कि पापा ने ये चीज बोली है, शुड आई डू इट बेटर, दैट वे। These are smaller things which will connect more to you and your child. Correct, Alok ji. I think you mentioned it very right, because especially during the teenager age, he want to have the validation on his way of living, or his thought process. Yeah. And until and unless you start respecting those way of working, or the life decision that he is taking or she is taking, I think the self-esteem that you want to create will not happen. The bonding that you want to create will not happen. So बच्चे का, as you rightly mentioned, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और मैं तो खैर इस चीज को बहुत बिलीव करता हूँ कि बच्चों को इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा एक पेरेंट का बेनिफिट ये होता है कि आपको देन यू डोंट हैव टू डू द हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मतलब आपको हमेशा फिर इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा उसके लिए। आपने बच्चे को काम दे दिया, हो सकता है वो गलती करे, देयर एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी गलती करे, बट वो बच्चा अगर काम ही नहीं करेगा, या फिर वो कोई और गलत काम करने लग जाएगा कहीं और किसी और के साथ, उसका प्राइस ज्यादा पड़ा है। You better let them make mistake with you, so that you have a better chance to observe and correct it. Yes. Let them make mistakes. भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि आदमी गलती नहीं कर सकता, so या कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता। So yes, we need to allow our child to make experiment, make decision by their own. And as you rightly mentioned कि कभी भी कुछ out of the track अगर आपने जैसा बोला है वैसा वो नहीं करते हैं, तो always ask first. ये बहुत ब्यूटीफुल टिप है आई थिंक, कि हमेशा पहले पूछो कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, बजाय उसको रिएक्ट करने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे हर चीज को आप एज रिस्पॉन्स समझते हैं रिएक्ट करने से पहले।
बहुत बहुत आई थिंक वैल्यूएबल इंसाइट है। अगर हमें इस वीडियो को जो भी लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आपके बच्चे में ये का इन्वॉल्व आपके साथ नहीं है, तो ये आलोक जी द्वारा जो टिप दिया है उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने इस चीज को अप्लाई किया है जो आलोक जी ने जस्ट बोला है, एंड उनको वो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि बच्चा हमारा ही बच्चा है, वो हमसे ही सब कुछ चाहता है, बट उसका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है जो और हमको लगता है कि हमारी सुन नहीं रहे हैं। या एक और चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, व्हेन यू डू सर्टेन मिस्टेक्स, हम भी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पेरेंट तो हम गलतियां नहीं करते, वी एज एन इंडिविजुअल, हमें भी गलती, हमसे भी गलतियां होती हैं, एंड व्हेन यू अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, दैट क्रिएट्स इवन अ बेटर बॉन्डिंग विद, उसको लगेगा यार मैंने गलती करी, पापा ने मेरे को समझाया ना, पापा से गलती हुई है, एंड ही इज कमिंग टू मी एंड सेइंग कि बेटा मेरे से ये गलती हो गई, जाने में अनजाने परफेक्ट। में। सो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड टू हर इज ह्यूमन, so it's very good to apologize in front of your children if you done some mistakes. उससे अगेन यू आर क्लोजर टू हिज हार्ट, यू कम क्लोजर, बच्चे को लगता है कि यार पापा ने से भी गलती होती है, नाउ ही इज कमिंग टू मी एंड शेयरिंग हिज थॉट्स कि बेटा मेरे से भी गलती होगी, नाउ आई हैव टू इंप्रूव इट। सो देयर इज अ सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सेंस ऑफ saying कि I am also a human being and I can do mistake, but I am there to rectify it, remove these issues and move forward. So this acknowledgement of mistakes is very very important. So I remember when you were citing this example, there's a movie called The Pursuit of Happiness. Now, The Pursuit of Happiness, in that movie, he has got this, I think, 6 to 7 years old child with him, and he goes around, does a lot of things, he promises a lot of things, but unable to fulfill. But eventually, when he fails, he sit down with his child and he admit, and that is where the bonding really gets deepen with the child. और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे जो नवरस हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो भी एक्सप्रेशन आते हैं, हम वी हैव टू एक्सप्लेन, हमको ना वो उनको जीना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ भाई, इट्स ह्यूमन टू क्राई, इट्स ह्यूमन टू समटाइम गेट एंग्री और समटाइम गेट मैड, बट उसका इंटेंशन बिहाइंड कुछ और होता है। अगर आप बच्चों को ये एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो क्या होने वाला है कि कल को आपने कुछ उसको कुछ ऐसी बात बोली जो उसके दिल पे हर्ट हुई, ही माइट टेक अ और शी माइट टेक अ ड्रास्टिक स्टेप। पर अगर आप उसको बिगनिंग से ही उस स्टेप्स को आप क्लैरिफाई करते चलते हो, तो ना बच्चों को जैसे एक चीज जनरली हम सभी सिखाते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन योर एंगर rather than showing your anger. True. तो उसमें क्या होता है कि द मोमेंट दे नो हाउ टू एक्सप्लेन देयर इमोशंस, वो ह्यूमंस को या रिलेशनशिप को समझने की उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो वो आपकी कही गई बातों को नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं। Correct. तो वो वेरी वेरी राइटली मेंशन। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पेरेंट अभी है, उनका बच्चा छोटा है, अभी उनके सामने पूरा बच्चे की पूरी एक जर्नी बाकी है, True. अब वो आपका ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, अब डे वन से लेके अब वो क्या एक 3 या 4 ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपने क्वालिटी टाइम का मुझे मालूम है कि आपने एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया कि दे विल डेडिकेटेड टू क्वालिटी टाइम, दे विल प्ले विद द चाइल्ड, दे विल गेट इन्वॉल्व। अदर देन दीज थ्री, इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड जो उनको करना चाहिए, आपको लगता है कि एक आइडियल वे उनको फॉर्मेट करना चाहिए सो दैट वो अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी में वो बॉन्डिंग, वो लव, वो अफेक्शन, वो केयरिंग, वो इंटीमेसी क्रिएट कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंटिंग इज अ जर्नी, राइट? इफ यू डू इट यू कंप्लीट द जर्नी इन 20 years, if you don't do it it's forever. Now it is your choice what do you want to do. आप अपने पेरेंटिंग की जर्नी को कितने साल में खत्म करना चाहते हैं फर्स्ट, बिकॉज ये कैनॉट बी लाइफ फॉरएवर, हर किसी को मरना है। तो क्या चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्पून फीडिंग करते रहें जब तक वो 50 साल का ना हो और आप 70 साल 75 साल के ना हो? दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, right? So there has to be a time defined for it. So I define time as 20 years, from 0 to 20. That parenting journey has to be there, and that journey has to be with fun. आपके ऊपर बोझ नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले parenting is not a burden at all. Parenting should be a journey wherein you enjoy your child from day 0 to up to 20 years, when you make him independent on
ऑन बोथ द फ्रेंड्स, ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रेंड्स, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, इसका बैलेंस बना के चलना है, राइट? नाउ योर आंसर इज कि हम ऐसी चीजें क्या करें जो बच्चा छोटा है ताकि हम वो गैप पहले से बढ़े और उसकी जिंदगी और अच्छे से बन जाए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो क्वालिटी टाइम है वो तो चाहिए, क्योंकि हम लोग सबको अर्न भी करना है। हमारे पास जो 24 घंटे है उसमें 6-7 घंटा आप तो सो के बिता देते हो, राइट? एवरीबडी डज दैट। अब जो बैलेंस 8 से 10 घंटे जो आप काम करते हैं और उसके अलावा जो 5-6 घंटे हैं उसको आपने इस हिसाब से प्लान करना है, wherein you at least you have to spend मतलब 1.5 hours to 2 hours quality time with your children. Doing what means सबसे पहले आप उससे पूछिए कि चलो स्कूल में बच्चे क्या पढ़ाई हुई। डोंट गेट इनटू द डिटेल अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक कि नहीं पापा मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाना है। सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावे आप उनसे पूछो समरी ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड टुडे, राइट? समराइज इट। आप अपने दोस्तों के साथ खेले हो या गप किए हो, आज क्या स्पेशल हुआ, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग इन हिज माइंड। और ये सब्जेक्ट मैटर पूछने से नहीं होगा, नहीं तो बच्चा बोलेगा पापा मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। वो तो आपको भी पता है कि बच्चा क्रिकेट खेलने गया था। What was going in his mind when he was batting or bowling or when he lost one match, whatever. So if you start digging from his mind, you'll come to know किस चैनल पे वो जा रहा है, उसकी सोच कैसी बन रही है। If he was losing the match, was he angry? If he was winning the match, was he hungry? Is he able to accept that defeat or not? ये चीजें आपको जब तक आप उसके साथ बैठ के डिग नहीं करेंगे, and that digging is about what? Poking and asking questions, that's it. Talk more and more. और कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है। I believe in this. The more you talk, the more you get something out of your child. और उसके हिसाब से you can plan your actions कि हाँ यदि मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे के एग्जाम्पल में देखता हूँ, वो जो हारने लगता है ना उसका चेहरा उधर जाता है। Now I'm trying to build that confidence कि हारना is also a part of जीतना. You have to learn to accept your defeats to win the next game. If you don't learn to accept defeats, you'll not win the next game or other games. तो ये चीजें दिमाग में आती हैं। So the second point was this, and तीसरा ये है कि involvement and encouragement, जो मैं हमेशा कहता हूँ उसके साथ इन्वॉल्व हो। उसकी छोटी से छोटी मे बी कि वो एक बुक ही पढ़ रहा है, एक स्टोरी ही बुक पढ़ रहा है, बोलो कि बेटा एक पेज मुझे भी पढ़ के सुनाओ ना, या चलो मैं एक पन्ना तुमको पढ़ के सुनाता हूँ। उसको लगेगा अरे यार मैं तो पता नहीं, उसको लगेगा मैं तो अपना छोटा सा स्टोरी पढ़ा था, व्हाई पापा इज इन्वॉल्व्ड, व्हाई पापा इज सेइंग, इनको कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ना, कल को वो खुद लेके आएगा आपके पास बुक, पापा अपनी ये स्टोरी पढ़ी ना बहुत अच्छी है, अब आप सुनाओ ना मुझे अच्छा लगेगा। सो द मोमेंट दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, यू हैव वन द रेस, आई वुड से। और यहीं से शुरुआत हो जाती है एक अच्छे बॉन्डिंग की। सो इट गोज विदाउट सेइंग। मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूँ। आई वाज समवेयर आउट ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग एग्जाम्स। मेरे को बहुत सारा सामान लेके घर आना था और उस समय समझो मेरे गांव पे टेलीफोन भी नहीं था, लैंडलाइन, मोबाइल तो थे ही नहीं, लैंडलाइन भी काम नहीं करता था, कई बार वायर टूट गया तो 2-2 महीना तक गया। सो उस समय टेलीग्राम होता करता, ये वाला टेलीग्राम नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट वाला टेलीग्राम होता था। उसमें मतलब अल्फाबेट्स और अक्षर्स कुछ लिखे होते थे, छोटा सा कोड लेता था, आप सेंटेंस भी नहीं लिख सकते। तो मैंने अपने ट्रेन का नंबर और बॉगी नंबर लिख दिया। सपोज 1291 उसमें 4 डिजिट का होता था, 2910 S7, उसमें स्लीपर क्लास यूज्ड टू बी वन ऑफ द गुड थिंग्स, और S910 S7 910 ऐसे करके मैंने इतना ही लिख दिया, डेट लिख दिया। जब ये टेलीग्राम मेरे पापा के पास पहुंचा, सो माय पापा यूज्ड टू बी वेरी सोशल गाय, बट उनके आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि व्हाट मैसेज आई हैव सेंट, बट ही इमीडिएटली कंक्लूडेड ओके ही हैज सेंट अ मैसेज दैट ये ट्रेन नंबर इससे वो आ रहे हैं। बाकी लोगों के लिए इट वाज लाइक फ्रेंच एंड जर्मन, पीपल नॉट डिकोड इट ऑल्दो इट वाज वेरी सिंपल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज if you are in the same platform, whatever you want to say, it will go to your children, and the vice versa. ये होना चाहिए। The moment you do it, you are through. There will be no gap called generation gap. मैं इसको नहीं मानता, मैं हमेशा इसको कहता हूँ this is not a generation gap, this is a feeling and intimacy gap. ब्रिलियंट, बहुत ही, आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने मेंशन किया आलोक जी। एक आई ओपनर की तरह ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करेगा। People have to operate from the same frequency which they expect. तो मैं मतलब आपका एग्जांपल से मुझे याद आया, पहले रेडियो चलता था, अभी भी होता है, एफएम है ना।
तो रेडियो में वैसा गोल घुमाने वाली एक बटन होती थी, तो वो चू 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 फिर एकदम से गाना बजता था। Correct. फिर आपको वो गाना अगर पसंद नहीं है तो आप थोड़ा और आगे इसको करते थे तो दूसरा गाना बजता था, है ना। तो वो बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर भाई मुझे जो गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप उस गाने को सुनना चाहते हो तो आपको उस फ्रिक्वेंसी पे आना पड़ेगा। Correct. Correct. Very right. Very nice. So I think we are pretty much on time. आई होप ये सारे टिप्स जो भी पेरेंट्स इसको लाइव या बाद में एज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ बेटर बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड, चाहे आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, यूजिंग द टिप्स विच इज बीइंग शेयर्ड बाय आवर पेरेंटिंग एक्सपर्ट मिस्टर आलोक कुमार विल डेफिनेटली हेल्प। और आई कैन ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको, क्योंकि वो बोलने में बहुत सिंपल लगते हैं, सर का जो लहजा है वो भी बहुत सिंप्लीफाई करके बोलते हैं, so you may not realize how impactful and how powerful these tips are. And the moment you start practicing what he just shared with you, you will see a completely different level of relationship between you and your child. ये बहुत ही ग्रेट इंसाइट है और वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट आलोक जी हमारे आज के शो में आए और उन्होंने बहुत अच्छे अपने टिप्स शेयर किए। बिफोर वी से फाइनल थैंक यू एंड गुड बाय, आलोक जी कोई लास्ट कमेंट आप कहना चाहेंगे? To close with, I'll just, again, my mission is to, bring a change in the society. As I told you, मेरा जो जिसको कहते हैं ना किक जो मिलता है, I want to create a society wherein we all feel safe when our children are alone on the roads, outside our houses. Second is, we see a lot of old age homes nowadays, हर शहरों में। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? I'm not talking about the exceptions. यदि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बचपन से लेकर के इतना सारा कुछ किया, एक समय आने के बाद माँ बाप बोझ क्यों बनते हैं बच्चों के ऊपर? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है क्योंकि उन माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ वो चीज कनेक्ट नहीं किया। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दोस पेरेंट्स, ट्राई टू हेल्प योर ओल्ड एज पेरेंट्स। अगेन, आपके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी वो देख रहा है। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग विथ योर ओल्ड एज पेरेंट्स, आपका बच्चा वही आपको रिटर्न में देगा। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो प्लीज बी कंसर्न कि आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना सारा कुछ किया है, सो व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर देम? डोंट सेंड देम टू ओल्ड एज होम्स। पहला, आई रिक्वेस्ट यू। एक्सेप्शंस आर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, बट अदरवाइज मुझे बहुत दुख होता है कि कोई कहता है कि मतलब आई हैव सेंड माय पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम, या पेरेंट्स ने ये देखते हुए कि मेरी वजह से बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, वो कहते हैं यार मेरे को भेज दो यार ओल्ड एज होम। व्हाई टू क्रिएट दैट सिचुएशन यार? दे हैव पुट देयर ब्लड एंड स्वेट, राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल द टाइम यू आर देयर। तो अब आज के डेट में जब उनको आपकी जरूरत है तो आपने उनको बाहर भेज दिया। And similar goes with those people. Even I have friends working in multinational companies, settled abroad. मैं ही कहता हूँ, आप तो चले गए, आपका करियर है, आप पैसे कमा रहे हो। What about your parents behind? वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि you compromise on your, profession or you don't earn. But आप सोचो ना, जब उनको दिल करता होगा कि मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के थोड़ा बात करूं, वीडियो कॉल इज नॉट सफिशिएंट माय फ्रेंड्स। मैं बहुत दिल से ये चीजें कह रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है। मेरा बच्चा अभी उतना बड़ा नहीं है, बट मैं आज से ये चीजें फील करता हूँ। और मुझे फील होता है कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर जाके सेटल हो गए हैं या फिर वो उनसे मिल नहीं पाते, साल 2 साल में 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं, उन पेरेंट्स को कैसा लगता होगा? बहुत, it hurts me a lot. I'm not saying don't compromise. You are a professional, do earn money, but don't compromise on certain feelings, because it's really important for your parents as well. आप उस चीजों को जोड़ो, समझो। Before I end, just my request is please think on these 3 points which I've told you. Make a better society, make your family happier, make your parents happier. यदि ये 3 चीजें आप कर लेते हैं ना, जिंदगी में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। That's it from my side. वाओ, थैंक यू सो मच आलोक जी। अगर ये आपका मैसेज हर घर में पहुंचता है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर सोसाइटी, अ बेटर कंट्री एंड अ बेटर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये थे आलोक कुमार जी, who has been working in the field of parenting along with many other experts, whom we will continue to invite on our the parenting talk show. So thank you, Alok ji. Thank you for joining us, guys.
You can follow Mr. Alok on Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn by hashtag parenting by Alok. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली हैशटैग बाय पेरेंटिंग बाय आलोक से मिल जाएंगे. आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली गो एंड फॉलो हिम, लाइक एंड सब्सक्राइब. और उसके बाद जो भी आपको पेरेंटिंग के सवाल हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क हिम. एंड जैसा कि आप जानते हैं, पेरेंट ट्राइब इज बीन क्रिएटेड ओनली फॉर यू. इट इज क्रिएटेड बाय द पेरेंट फॉर द पेरेंट. सो कोई भी आपका पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चैलेंजेस है, कोई आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई जानकारी आपको मिले, प्लीज डू राइट ऑन आवर कमेंट हैशटैग पेरेंट ट्राइब. टी कॉमन है PARENTRIIB, which I will also mention in after editing the video. So please join and follow Parent Tribe, so that we will every week we will continue to invite more and more parenting expert. और during इस जर्नी में हम probably after some time we will again invite आलोक जी, क्योंकि after 6 months I'm sure he will have a different point of view, different expertise on many other parenting topic. So thank you so much for watching this parenting talk show. Uh, let's create a better world by empowering our child. Namaskar. Thank you.